The rise of nationalism in Europe. I'll be doing this chapter in dual way for a better understanding and scoring full marks in this particular chapter. First of all, I'll just go over with all the important terms, important events that basically comprises of this chapter, and then I'll be taking it along with the NCERT notes, which are part of NCERT only. That's for the better understanding. अब अगर हम लोग to start off with the rise of nationalism in Europe, आज अगर आप यूरोप का एक मैप देखते हो, if you look at the map of Europe today, then you will find the states like France, Germany, Switzerland, Spain. Then on the right side, it is Italy. Then on one other side, there are clusters of some of the countries. Then you have Czech and Poland. And on the other side, that is eastern side, you have Russia. तो जो आज हम यूरोप का एक मैप देखते हैं, दिस इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर and even later on all those you know events, some of the political changes अभी भी हो रहे हैं. तो वो जो चेंजेस हैं उनकी वजह से जो मैप हम आज देखते हैं, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यूरोप वाज एक्चुअली इन द अर्लियर स्टेज. आज हम जानते हैं ईरान, अभी रिसेंटली देयर वाज टेंशन around the area. In fact, that was a very severe tension. Long back, we called it as Persia. And some of the portions of Iran, Iraq, ये सब आपके मेसोपोटामिया के अंदर आते थे. तो आज जो ये यूरोप का शेपअप है, द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ अडॉप्टिंग अ गवर्नमेंट, ये कैसे स्टार्ट हुआ. तो दोज चिल्ड्रन हु हैव ऑलवेज बीन विद मी इन 9th स्टैंडर्ड, जिन बच्चों ने मेरे साथ 9th में पढ़ाई की थी, नो डाउट आज नहीं है वो लोग, लेकिन जो बच्चे 9th में पढ़ते थे उनको मैं हमेशा एक बात कहती थी कि बच्चे, जब आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हो तो डोंट फॉरगेट इट, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द प्रीक्वल एंड नेशनलिज्म इन यूरोप इज सीक्वल. वो आजकल चलता है ना, पार्ट 1 पुष्पा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो ये उसका सीक्वल है, बाहुबली जी का सीक्वल है, जहां फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा खत्म होता है. द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे, इन दैट चैप्टर, वहां से ये चैप्टर शुरू होता है. सो वी are going to learn some of the key elements of French Revolution also. Then what were the idea of nation according to French revolutionist, which is a 5-marker and a repeated question. Then from this particular chapter, we have the questions like small questions like Frederick Schore, जर्मन स्टेट किसको बोलते हैं, एब्सोल्यूटिस्ट किसको बोलते हैं, देन हु वर लिबरल्स, व्हाट वाज Zollverein. These are some of the very short questions which we expect from this chapter. Whereas if we talk about the long, we have French Revolution's ideas. Then at point Silesia Revolution. Third, you have is the Greek independence, which is very rare. Then you have Germany, Italy, Britain,
तो ये जो जर्मनी है इट इज वेरी कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो जो ये वाला जो क्वेश्चन है जर्मनी यूनिफिकेशन वेरी कॉमन. Italy, once or twice it has come, even mostly the schools have taken it. Then Great Britain, ये वाला भी आया है पेपर में. एंड लास्ट में क्वेश्चन आता है व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर वन. दैट इज वन ऑफ द अगेन repeated questions. Then in between, role of the romanticism, that is आपके जो राइटर्स पोएट्स उनके जो रोल थे उसके बारे में एक आध बार पेपर के अंदर आया है. तो दिस इज बेसिकली, अगर आप मोटा मोटा इस चैप्टर को लर्न करना चाहते हो, मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स टेल मी मैम हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, हमने पूरा चैप्टर नहीं लर्न करना, हम उतना ही क्वेश्चन करेंगे जो हमें आएगा पेपर में. तो आई टेल देम दीज क्वेश्चंस ओनली, दे लर्न एंड दिस इज हाउ दिस हैज बीन. मैंने कहा कि जर्मनी लर्न करके चले जाओ, देन इटाली याद करके चले जाओ, क्योंकि चॉइस रहता है इस चैप्टर के अंदर. वंस और ट्वाइस यस, कि सिर्फ मजनी या गरीबल्दी इनके ऊपर एक आध बार आया है, बट नॉट मच. तो इफ you are very keen that I need to learn only, and I'm talking about boards, I'm not talking about anything in the mid. तो अगर आपको लगता है नहीं, तो you can only focus on the main points that come in this particular chapter, right? So that's the rise of nationalism in Europe. First of all, I'll just give you a gist with the notes and then we would move. On the screen, if you see, I have made some pictures, I have written something. तो सबसे पहले तो आपके पेपर के अंदर जैसे आता है, इफ यू बिगिन विद योर बुक, वी विल बी डूइंग, हम बुक को जब देखते हैं तो ऑन द वेरी फर्स्ट पेज वी हैव अ प्रिंट, ये जो बना हुआ है, और ये वन मार्कर में आया हुआ है कि व्हाट वाज फ्रेडरिक सोरेस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट. तो ये जो है इट इज एन आइडिया, मतलब उस जमाने में नेशन नहीं होता था. अब आप कहाँ को बिलोंग करते हो, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, आप कहोगे मैम आई बिलोंग टू इंडिया. तो इंडिया का मतलब क्या हुआ, मतलब इफ आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई इंडिया का मतलब क्या हुआ, यू विल से मैम वी आर इंडियंस, हम हिंदी बोलते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स हैं, यानी कि एंड इफ आई से कि आई एम ऑल्सो एन इंडियन बट आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, तो हमारा सबका एक कॉमन आइडेंटिटी है. वी हैव अ कॉमन लैंग्वेज, वी हैव अ कॉमन आइडेंटिटी, हमारा गवर्नमेंट कॉमन है. बट यूरोप में ऐसा नहीं था. द कंट्रीज जिसको आज हम जर्मनी या फिर स्पेन या फ्रांस बोलते हैं, दीज वर ऑल स्कैटर्ड, मतलब फ्रांस का एक पोर्शन जो है इट वॉज पार्ट ऑफ जर्मनी, मतलब वहां फ्रेंच रहते थे लेकिन वो जर्मनी का पोर्शन था. जर्मनी का एक पोर्शन किसी और स्टेट, और उस वक्त में जर्मनी नहीं होता था, पहले आपका प्रशिया था. तो जो फ्रेंच आर्टिस्ट था ही क्रिएटेड वन थिंग जो उस वक्त में इट वाज लाइक इम्पॉसिबल. दैट इज व्हाई इन योर बुक देयर इज वन वर्ड कॉल्ड यूफोरिया. आपके पेपर में है, वन मार्कर में है, आता है, यानी समथिंग विच इज कंप्लीटली अनइमेजिनेबल. लेकिन उन्होंने एक प्रिंट बनाई थी, पिक्चर बनाई थी, जिसमें उन्होंने दिखाया था स्टैचू ऑफ लिबर्टी सबसे आगे, मतलब कि अमेरिका, पीपल ऑफ यूरोप, अमेरिका सबसे आगे है टुवर्ड्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी. उसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, एंड दे आर ऑल हैविंग, ऊपर अगर आप देखोगे इन दैट, मतलब वो एंजल्स आर देयर, और नीचे आपके जो नीचे गिरे हुए हैं दे आर ऑल दोज पीपल जो कि एब्सोल्यूटिस्ट थे, यानी कि दोज हु वांटेड टू होल्ड द पावर. और इसको बोला गया था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. वन मार्कर क्वेश्चन है, क्लास 10, याद रखना. तो एट दैट टाइम इट वाज एक्चुअली समथिंग विच वाज इम्पॉसिबल.
But there were, as I said, Europe in 18th century did not have any nation state. They were divided into kingdom. They were divided into duchies. They spoke different dialects. Dialects मतलब लैंग्वेज के ही अलग अलग फॉर्म्स, जैसे हिंदी के ही आपके अलग अलग रूप होते हैं. They did not have any collective identity. And most of the people, most of the areas were either ruled by nobles. एरिस्टोक्रेट्स वर हैविंग, एरिस्टोक्रेट्स होते हैं जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जिनके पास बहुत जमीन जायदाद जायदाद होती है, वो नेवर देयर. जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, रिच होते थे, वेल्दी होते थे, दे स्पोक फ्रेंच. देयर फैमिलीज वर कलेक्टेड थ्रू मैरिजेस. बट जो आपके वर्किंग क्लास थी या फिर उससे नीचे थे, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में अगर आपको याद हो, 3 estates, they had different kinds of languages and way of. तो देयर जो मिडिल क्लास या फिर उससे नीचे वाले जो लोग थे, दे वांटेड, वो लोग चाहते थे कि देयर शुड बी अ कॉमन नेशन स्टेट. अब आपका 5 मार्क में ही आया है क्वेश्चन, बट मे बी दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 3 marks. That is, what were the ideas that were carried by nationalism by the people of France? मतलब उनके अकॉर्डिंग क्या था? तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट थे, उनका मानना था there should be what we call as one single nation, and people living in that should be called as citoyens, citizens, not as subjects. उस जमाने में subjects होते थे, मिस्टर, मॉन्शेयर, लेकिन वो नहीं चाहते थे. थर्ड, there should be a common language, French. There should be a common identity, flag, national flag. उन्होंने उस वक्त में ब्लू रेड का बनाया था. एंड जैसे हम कहते हैं ना, हमारी मातृभूमि, वो कहते थे ला पैत्रे. ला पैत्रे 1 मार्कर में बोर्ड्स में कई बार आया है. मतलब जब क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता था तब भी आया है, एमसीक्यू में भी आया है. ला पैत्रे मतलब फादर लैंड. हम मातृभूमि बोलते हैं, वो पितृभूमि. सो दे वांटेड अ नेशन स्टेट, और उन्होंने कई रिफॉर्म्स किए थे. दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी रिपीटेडली देयर इट हैज बीन इन द एग्जाम. तो ये वो लोग चाहते थे, देयर शुड बी अ कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. उन्होंने कुछ आइडियाज बनाए थे, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारा खत्म हुआ था, इफ यू रिमेंबर, उस वक्त नेपोलियन बोनापार्टे हैड इमर्ज्ड एज द रूलर ऑफ फ्रांस. और जो नेपोलियन बोनापार्टे था, ये जो लिखे हुए ना, दिस हैज बीन इन द एग्जाम, ऑप्शन में आता है, चॉइस में आता है. जो पहला क्वेश्चन था उसके ऑप्शन में, व्हाट वर सम ऑफ द measures taken by नेपोलियन, या फिर राइट द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड 1804. मतलब दोनों में से दोनों का आंसर सेम है. नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए थे उस वक्त. तो सबसे पहले ही हैड इंट्रोड्यूस्ड अ सिविल कोड 1804, जिसको हम बोलते हैं नेपोलियन कोड. उसके अकॉर्डिंग ऑल द प्रिविलेजेस, पहले नोबल्स को या फिर जो आपके रिच पीपल होते थे उनको जो है स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे. सो दोस प्रिविलेजेस वर अबॉलिश्ड. सब लॉ के सामने इक्वल रहेंगे. ही गेव द प्रॉपर्टी राइट, यानी कि पहले सिर्फ नोबल्स या आपके क्लरिक्स जो होते थे, जो मतलब कि चर्च में काम करते थे, दे कुड बाय द प्रॉपर्टी. नेपोलियन ने उसको अबॉलिश किया कि प्रॉपर्टी कैन बी बॉट बाय एनी वन.
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10। देन ही सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। जो पहले फ्यूडल सिस्टम था, मतलब जमींदारी जैसे हमारे यहाँ कहते हैं वैसे वो सिस्टम, उसको हटाया। बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन के अंदर। जो बिजनेस के लिए गिल्ड होते थे, मींस अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव्स, उसको हटाया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी पता है? उसके साथ प्रॉब्लम ये थी दैट ही वांटेड हिज कंट्रोल ऑन एंटायर फ्रांस एंड इवन यूरोप। वो धीरे 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 फ्रांस में से फ्रेंच आर्मी जो थे, दे वर ट्राइंग टू कैप्चर अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, एंड वहां पर वो अपने लोगों को रखता था। देन सेंसॉरशिप था, मतलब मीडिया सब कुछ कवर नहीं कर सकती थी। टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे आपके, और इसकी वजह से मेनी ऑफ द पीपल वर अगेंस्ट हिम। एंड अल्टीमेटली, वन मार्कर क्वेश्चन, अल्टीमेटली द पीपल फ्रॉम यूरोप, जर्मनी वगैरह मिलकर उसके अगेंस्ट वॉर किया, एंड ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। वन मार्कर क्वेश्चन। नेपोलियनिक कोड आपका 2 या 3 में आ सकता है। एंड इन विच बैटल ही वॉज डिफीटेड इज बैटल ऑफ वाटरलू, 1815। अब 1815 में नेपोलियन का तो खत्म हो गया, मतलब यहां से हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पोर्शन खत्म। फिर क्या हुआ? हु रूल्ड फ्रांस? व्हाट हैपेंड टू द पार्ट्स ऑफ यूरोप? सो ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों ने कलेक्टिवली डिफीट किया था। वन मार्कर क्वेश्चन, कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन। इसके बाद ऑस्ट्रिया के जो ड्यूक थे, कौन? वन मार्कर क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट अगेन। ऑस्ट्रिया के जो ड्यूक थे, मेटरनिच, इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस आते हैं, मेटरनिच के ऊपर सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं। ही होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वेना। कांग्रेस मतलब असेंबली, वेना इज द प्लेस वहां पर, एंड ट्रेटी ऑफ वेना वाज साइंड इन 1815। उसमें उन्होंने क्या किया? जो चेंजेस नेपोलियन ने किए थे उसको हटा दिया। देन इन मेनी ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप वापस कंजर्वेटिव मोनार्की रेजिम, यानी कि राजा का रेजिम डाल दिया। जो बोरबोन डायनेस्टी फ्रांस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हार गई थी, उसको दोबारा रिस्टोर किया। फ्रांस के बाउंड्रीज को सेट किया। पोलैंड के कुछ हिस्सों को रशिया को दिया। एंड जो जर्मन का 39 स्टेट था उसमें उन्होंने कोई चेंजेस नहीं की। सो दे मेड सम चेंजेस इन द एंटायर यूरोपियन मैप, यूरोपियन प्लेसेस। फ्रांस के चारों तरफ उन्होंने बॉर्डर्स रख दिए, एंड कुछ नए एरियाज बने, और जो कुछ पुराने थे लाइक पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को चला गया। एंड दस अ न्यू कंजर्वेटिव रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1815। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव्स थे ना, दे डिड नॉट टॉलरेट एनीथिंग। अगर इनके खिलाफ कोई भी आवाज उठाता था, एनीवन, they would be angry. They would not tolerate the criticism. So they impose a censorship. Censorship मतलब control on speech, control on media. कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो सकती थी जिससे गवर्नमेंट पे आवाज उठे। और इसीलिए देयर वर पीपल अक्रॉस यूरोप जिनमें पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम की एक चाह थी। They wanted politically there should be a government which is based on democratic policy. Politically वो लोग क्या चाहते थे? वहां के जो लोग हैं यूरोप के,
there should be a government which is based on democratic policies. They wanted a constitution. एंड इकोनॉमिकली यानी कि जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उनका मानना था कि वो जो ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थे, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स पे जो रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए थे, वो हट जाए. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 2010, 11, 12 वगैरह में आप पेपर निकाल के देखोगे ना बोर्ड का, पहला क्वेश्चन होता था व्हाट इज ऑलिवेरिन. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ऑलिवेरिन. एंड दे ऑल फॉर्म्ड, वहां पे जितने भी आपके बिजनेसमैन वगैरह थे, उन लोगों ने मिलकर एक यूनियन बनाया, ट्रेड यूनियन, जिसका नाम था जोल्वेरिन. इट वॉज इन द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया, joined by Germany, and there were people from across Europe जिनमें जो इसके अंदर मेंबर थे. So now people wanted the freedom politically also and economically also. तो बच्चे जो अभी तक आपने पढ़ा, जो अभी तक आपने मतलब समझा, वो था कि what were the changes that took place during the French Revolution and after French Revolution, and what led to the different changes जो आगे हम पढ़ रहे हैं. As I said, उस वक्त में there were people, women भी थी, they also wanted changes. There were many women जिन्होंने आगे बढ़कर जो है अपनी बातें रखी थी. There were liberals, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी वो थे. They wanted a government based on constitution. इवन उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी ऑफर किया कि मोनार्की रहे, राजा रहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहे. लेकिन it was all a failure. And slowly revolution started. यूरोप के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. तो कैसे हुआ? पहला, अगर हम 1821 को लेते हैं, तो दिस इज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. इसमें सिर्फ एक ही मार्क्स का क्वेश्चन अब तक आया है, when मतलब कि which treaty recognized Greek as an independent state. इसमें अभी तक यही क्वेश्चन आया है. जो ग्रीक है, अगर हम अपने हिस्ट्री को लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को, तो ग्रीक इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन. ग्रीक को हम क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं. क्रैडल का मतलब क्या होता है? पालना, जिसमें बच्चा झूलता है, सोता है. मीन्स इट वॉज द ओल्डेस्ट वन. और वहां पर अनफॉर्चुनेटली ग्रीस जो है, इट वॉज रूल्ड बाय एन इस्लामिक ऑटोमन एम्पायर. तो जो ग्रीक्स थे, दे डिड नॉट वांट टू बी अंडर द ऑटोमन एम्पायर. वो लोग नहीं रहना चाहते थे उनके अंडर. सो दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, एंड दे वर सपोर्टेड बाय ब्रिटेन, फ्रांस, रशियंस. ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन उनके यहाँ पर ऐसा, हमारे यहाँ जैसे मूवमेंट था, क्विट इंडिया मूवमेंट, सत्याग्रह ना, मतलब कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा कोई मूवमेंट नहीं हुआ था वहां पर. वहां मैक्सिमम जो थे पोएट्स, आर्टिस्ट, इन लोगों ने ग्रीक को जो है सपोर्ट किया था. इनफैक्ट इंग्लिश पोएट थे एक बहुत फेमस, लॉर्ड बायरन. ही इवन ऑर्गेनाइज्ड द फंड, ही इवन फॉट इन द वॉर, एंड देयर वाज अ वॉर, एंड अल्टीमेटली लॉर्ड बायरन की डेथ हो गई थी ड्यू टू फीवर. लेकिन विथ द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ये याद रखना आपको, ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंट, ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. इसमें यही क्वेश्चन अभी तक आया है कि विच ट्रेटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट. अब ग्रीस हो गया.
30 में, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाला ही था, जब बोरबोन डायनेस्टी को लोगों ने ओवरथ्रो कर दिया था, उसको हम बोलते हैं जुलाई रेवोल्यूशन। और जब जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि जुलाई में जब रेवोल्यूशन हुआ था, तो बेल्जियम जो कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था, जो बेल्जियम नीदरलैंड का हिस्सा था, वो अलग हो गया। हम लोगों ने बेल्जियम के बारे में पावर शेयरिंग में पढ़ा था। देयर वर मेनी पीपल, दैट इज कल्चरल पीपल, लैंग्वेज, आर्ट, म्यूजिक, कार्ल कर्पन्सकी, जिन्होंने अपनी आवाज, अपने पेन, अपने प्ले, उसके थ्रू दे हैड एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज। बहुत सारे थे। और आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, अभी आई बी शोइंग दैट, कि हाउ लैंग्वेज एंड कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। आया हुआ है, मतलब वंस और ट्वाइस, बट इट हैज कम। स्कूल्स में बहुत आता है। लैंग्वेज को लेकर पोलैंड के जो लोग थे, दोज हु वर पार्ट ऑफ रशिया, उन लोगों ने जो है रशियन को, रशियन डोमिनेंस को लेने से मना कर दिया। जब उन पर जबरदस्ती की गई कि दे कैन नॉट स्पीक देयर लैंग्वेज, तो वहां के जो चर्च के जो प्रीस्ट होते थे, दे यूज टू फोर्सिबली स्पीक इन पॉलिश। अल्टीमेटली दे वर पनिश्ड और उनको साइबीरिया भेज दिया जाता था, जो विच इज वेरी डेंजरस, बहुत ठंड होती है वहां, वहां भेजते थे, नॉर्थ पोल। येट दे कैरीड देयर लैंग्वेज। देन देयर वर पीपल जिन्होंने बोला था, फॉक्स, मतलब हम बोलते हैं ना टुगेदर, ऐसे वर्ड्स दिए थे। देयर वर पीपल लाइक कार्ल कर्पन्सकी। देन देयर वर, इन जर्मनी देयर वर ब्रदर्स जिन्होंने फोक टेल को आगे लेकर गए थे। सो देयर वर नंबर ऑफ पीपल who carried the idea of nationalism, liberalism through their poems, through their language, through their concert, उन्होंने आगे रखने की कोशिश की थी। सबसे इस पूरे उसके अंदर एक इंसान ऐसा था, गिसप मजनी, who formed two kinds of political clubs, यंग इटाली, और इसको जो है मेटरनिच, मेटरनिच जो है इसको सबसे ज्यादा नापसंद करता था। मैंने अभी आपको बताया था कि मेटरनिच के ऊपर आपके दो क्वेश्चंस आते हैं, वन मार्कर में आते हैं हमेशा। He called him as the worst enemy of social order. मेटरनिच के ये कुछ कोट्स हैं। गिसेप मजनी is the worst enemy of social order, and when France sneezes, the entire Europe catches cold. He was, जो मजनी, सॉरी, ये जो मेटरनिच था, he was the Duke of Austria. So this is how the idea of nationalism spread through common people, through culture, through language. तो उसका असर क्या हुआ? So if you look on your screen, I have made making of Germany, Italy unified, strange case of Britain. तो ये ही आपके क्वेश्चंस 5 मार्क्स में आते हैं, बहुत रिपीटेडली आए हुए हैं। मेकिंग ऑफ जर्मनी इज ऑल्सो योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। जर्मनी, आज हम जानते हैं जर्मनी, वी नो जर्मनी, बर्लिन, बर्लिन में आपका वॉल ऑफ बर्लिन था, बट अर्लियर जर्मनी वॉज नॉट इन दैट वे। जर्मनी आपका स्कैटर्ड था एंड मेनी ऑफ द पार्ट्स वर कॉल्ड एज प्रशिया। और प्रशिया जो था दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो बहुत सारे जो लोग थे इन जर्मनी, दे वांटेड जर्मनी टू बी यूनिफाइड, प्रशिया जर्मनी एक ही हो जाए। तो 1848 में, कौन से साल? 1848, ये पेपर में एक बार आया है। अभी मैं टाइमलाइन दिखाऊंगी आपको वंस वी स्विच ओवर टू एनसीईआरटी। उस वक्त में स्टार्ट हुआ था
दिस 18 मई 1848 इट स्टार्टेड। और आपको पता है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस टाइम और डेट्स और समथिंग, मतलब कि मई में स्टार्ट हुआ था, जनवरी में। दिस इज बिकॉज जब ये स्टार्ट हुआ था ना, मतलब वो जो डे है, डेट, दैट को मतलब कि दैट कोइंसिडेंटली क्लैशेस विथ माय सिस्टर्स बर्थडे। एंड जिस दिन जर्मनी आपका जो है यूनिफाई हुआ था, दैट इज द डे व्हेन माय पेरेंट्स गॉट मैरिड, 18 जनवरी। So I can never, forget it. So it started in 1848. People wanted कि Germany should be under one single king. उन्होंने उस वक्त में जो किंग था उसको ऑफर किया टू रन द गवर्नमेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन। दे मेड ऑल इंडिया जर्मन असेंबली, जैसे आपका फ्रांस में बना था नेशनल असेंबली, सेम वैसा ही जर्मन असेंबली बना था। बट वहां का जो राजा था उस वक्त, ही रिफ्यूज्ड। नॉट ओनली ही रिफ्यूज, उसने सिर्फ रिफ्यूज नहीं किया, उसने उल्टा इनको डिसमेंटल कर दिया, मतलब अपने ट्रूप्स भेजकर इनको अलग अलग कर दिया। दे यूज टू मीट इन द, जो वहां पर जर्मन पार्लियामेंट था, आपके बुक में उसकी फोटो बनी और पेपर में भी आता है, वहां मीट करते थे। दे यूज टू, द women डिड नॉट हैव एनी पावर, दे हैड टू स्टैंड आउट। So the king did not want to continue with constitutional monarchy. But वहां एक इंसान था जिसको हम बोलते हैं द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। वन मार्कर क्वेश्चन, कभी मतलब इसको भूलना मत, याद करने के लिए। ऑटो वॉन बिस्मार्क, ही वॉज कॉल्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी, जिसने जर्मनी बनाई। उसने प्रशियन आर्मी एंड अपने इंटेलिजेंस से, ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो राजा लोग होते हैं उनके नीचे जो काम करते हैं, उनके हेल्प से उसने सब कुछ इकट्ठा किया। देयर वर 3 wars which were fought for 7 years, and ultimately Prussia and Germany was unified on 18 January 1871 in the Hall of Mirrors। एंड जो प्रशिया का उस वक्त का राजा था, विलियम वन, ही वॉज गिवन द किंगशिप, उसको राजा बना दिया गया। और प्रशिया उस वक्त में जो बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देती थी, उसको जर्मनी के अंदर इंप्लीमेंट किया गया। 10 जो मॉडर्न जर्मनी है उसका फॉर्मेशन हुआ। अर्लियर जर्मनी एंड जो प्रशिया था, दे वर टू डिफरेंट एरिया, दैट इज व्हाई वी से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हम इसीलिए उसको यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बोलते हैं, क्योंकि उस वक्त में प्रशिया एंड जर्मनी वर देयर। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ जर्मनी। अब इटाली के लिए आओ, बड़ा ही मतलब स्ट्रेंज है। इटाली एक्चुअल में इस अभी भी कम, मतलब कि वहां पर जो है पॉपुलेशन कम है। डेफिनेटली मिलान इज देयर, वन ऑफ द ब्यूटी स्टैंडर्ड एंड शॉपिंग सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट, आपके वो जो प्रादा वगैरह हम बोलते हैं, दे आर ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ इटाली। लेकिन वहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम थी। एंड जो इटाली आज हम देख रहे हैं, विच इज ये जो, अगर आप देखो ना, ये रेड कलर का ये जो पूंछ सी लटक रही है ना, दिस इज इटाली। तो ये जो इटाली होती थी पहले 7 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, और इसमें जो 7 अलग अलग हिस्से थे, अलग अलग लोग इसको रूल करते थे। सम वर रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन, सम वर रूल्ड बाय द, वहां पे जो पोप्स होते थे वो रूल करते थे। एंड पीपल वर स्कैटर्ड। अब यहां पर गिसेप मजनी, he had formed the secret society called Young Italy, जिसके मेंबर्स ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया। और इस मूवमेंट को चेहरा दिया वहां का जो चीफ मिनिस्टर था, काउंट केवॉर। आपके पेपर में, आपके बैक में क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काउंट केवॉर। उसने जो है, उस वक्त में जो राजा थे,
इमानुअल उनको उनके मदद से आर्मी लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटाया, जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस इटाली के हिस्से में थे। फिर वो सदर्न इटली गए, वहां पर उनको एक और इंसान मिला जिसका नाम था गिसेप गरिबलिटी। वो गिसेप मजनी का फॉलोवर था। ही वॉज एंड ही अलोंग विद द लोकल पीजेंट्स, कोई सोल्जर्स नहीं थे, लोकल पीजेंट्स फार्मर्स जो थे, उनकी मदद से टू सिटीज ऑफ सिसिली गया, वहां से स्पैनिश रूलर्स को भगाया। And thus the Italy, which was divided to seven different parts, was unified into one single country called Italy. और किंग इमानुअल को पूरे इटली का राजा बनाया गया। पहले ये जो इमानुअल था वो सिर्फ सर्दिनिया पेडमोंट पर रूल करता था। दिस इज, ये जो ग्रीन सा बना हुआ ना, दिस इज सर्दिनिया, और ये ऊपर है, ये सर्दिनिया है। पहले सिर्फ इसी जगह पर इसका रूल था। लेकिन आफ्टर द यूनिफिकेशन द एंटायर इटाली केम अंडर इमानुअल। लेकिन अगर आप देखो तो जो वहां के लोग थे वो इतने इलिटरेट्स थे कि जब वो लोग स्लोगन बोलते थे मार्च में, मूवमेंट में, ला तालिया ला तालिया, तो उनको नहीं पता था कि दे आर फाइटिंग फॉर देयर कंट्री कॉल्ड इटाली। उनको लगता था ला तालिया इमानुअल की वाइफ का नाम है। बट though they were illiterates, but yet they participated in the movement, and ultimately Italy was freed and it became one single country, Italy, under King Emmanuel. तो पहले हमने ग्रीक का पढ़ा था, फिर हमने जर्मनी का पढ़ लिया, फिर इटाली का पढ़ लिया। अब अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो समवेयर हम बात करें तो जहां फ्रांस खत्म होता, फ्रांस के इस तरफ आपका समुद्र है, उसके उधर ऑन द लेफ्ट, आई शो इन द मेन बुक, यू हैव यूनाइटेड किंगडम, जो आज की डेट पर प्रेजेंट डे में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेश, और उससे भी थोड़ा आगे अलग सा एक आइलैंड है आयरलैंड, ये चारों मिलकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको पावर शेयरिंग में बताया था ना, यूएसए यूके आर कॉल्ड एज कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो ये अलग अलग थे, लेकिन ये चारों एक ही कंट्री के अंडर आते हैं, यूनाइटेड किंगडम। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है, लॉन्ग बैक 1700s में इट वॉज रूल्ड बाय किंग्स। लेकिन जो स्कॉटलैंड है, वेश है, आयरलैंड है, they were having different kinds of rulers. Scotland basically was a लो, मतलब कि मिडिल या फिर पुअर एरिया। तो जो ब्रिटेन थी, इनके पास था पार्लियामेंट, इन्होंने उस वक्त में अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम बना लिया था। दे वर हैविंग मनी, दे वर हैविंग पावर, एंड इन्होंने जो है, वन मार्कर क्वेश्चन इसमें, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 एमसीक्यू में कई बार आया है, उसके अंडर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को कंपलसरी एक कर दिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब आयरलैंड, आयरलैंड क्या एक अलग सी कहानी है। बेसिकली आयरलैंड के जो लोग थे, उनमें आपस में लड़ाई थी। सम ऑफ द आयरलैंड आयरिश वांटेड आयरलैंड टू बी पार्ट ऑफ ब्रिटेन, जो प्रोटेस्टेंट्स थे, एंड कुछ आपके रोमन कैथोलिक्स जो थे, दे वांटेड आयरलैंड टू बी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। वहां कुछ लोग थे लाइक वॉफ, उन लोगों ने आवाज उठाई भी थी। लेकिन जो प्रोटेस्टेंट्स थे, दे वर रिच, दे वर पावरफुल, और इस वजह से आयरलैंड वाज आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम का एक
फ्लैग है यूनियन जैक, उनकी एक लैंग्वेज है इंग्लिश, एंड नेशनल एंथम गॉड सेव दी आवर किंग, ये उनका नेशनल एंथम है। 10 आज जिस यूनाइटेड किंगडम को हम जानते हैं, दैट वाज बेसिकली अ पार्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज का इन स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्श, बट आज वो एक है। Today, if you say United Kingdom, if you are going to United Kingdom, you may be going to England, you may be going to Scotland, you may be going to Ireland. But इसके बाद there were many changes in the world, क्योंकि 1900s तक there were many changes which were coming. वहां एक ऐसा एरिया था, मतलब यूरोप के अंदर, इटाली के पास, that is Greece, Barcelona, then there were small areas. ये एरियाज छोटे छोटे थे, एंड दे ऑल वर जेलस ऑफ ईच अदर, और इस एरिया को हम टुगेदर बोलते हैं बाल्कन्स। मतलब इट कंप्राइजेस ऑफ मॉडर्न डे मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बार्सिलोना, ग्रीस, तो छोटे 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 कंट्रीज हैं मॉडर्न डे में, लेकिन ये आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे। एंड ऑल द ग्रेट यूरोपियन पावर्स लाइक जर्मनी, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सब चाहते थे कि जो बाल्कन वाला एरिया वो उनके पास आ जाए। सो दे यूज टू आपस में, जो बड़े बड़े पावर्स थे लाइक फ्रांस, जर्मनी, ये सब आपस में ट्रेड के लिए, नेवल, मतलब वहां से नेवी के जाने के लिए लड़ाई करते थे आपस में। और ये लड़ाई इतनी बड़ी हो गई that ultimately it led to the World War One. On one side, some of the countries were there. On other side, some other countries were there. Later on, US also joined. और इस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 रहा। लेकिन उसका जो रीजन था, ये आपके एग्जाम का, specifically in the schools also, it is very important. What were the events that led to World War One? That is because of the fighting over the area called Balkans. बाद में nationalism changed into the word called imperialism, यानी कि जो रिच कंट्रीज होती थी, दे यूज टू दे ट्राइड टू ओवर पावर कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ये लोग इस जगह पर अपनी कंट्री मतलब अपना वो रखना चाहते थे। एंड ब्रिटेन वांटेड दैट दे शुड रूल ओवर द एंटायर वर्ल्ड, बट स्लोली स्लोली ये सब कुछ खत्म हुआ, and a new kind of government, a new kind of economic war ऐसे हुआ। और आज हम जानते हैं यूरोप जो है, जिनके बारे में आज हम अभी पढ़ रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटाली, दे आर ऑल नाउ इनटू वन सिंगल यूनियन कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। पावर शेयरिंग में पढ़ा था ना, ईयू का कैपिटल इज ब्रसेल्स। तो नाउ दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट, और आपस में जब वो लोग ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो दे हैव मेनी प्रिविलेजेस दैट दे गिव टू ईच अदर। अगर आप ईयू के अंदर किसी एक नेशन का भी, इफ यू गेट द वीजा, यू कैन विजिट ऑल अदर कंट्रीज, जिनको हम शेंगन वीजा बोलते हैं। आज यूरोप का जो एक मैप है वो अलग है। टुडे पोलैंड इज अ सेपरेट कंट्री। रशिया, पहले जो यूएसएसआर था, आज रशिया है, उसका अपना एक स्टोरी है, which you have already done in your 9th standard, how it came from an agricultural country to, first of all, it became a socialist country and now a democratic country. रशिया एक अलग हिस्सा बन चुका है, and Europe now is one of the strongest मतलब की continents in the world. So this is how nationalism start हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ?
After the French Revolution, there were different areas जहां अलग अलग तरीके से changes आई, and later on in different parts different revolutions started. Like in Greece it started, there was a small revolution in Silesia. Then in Germany there was a nationwide movement. Italy there was an unification. Britain it did not have any movement, लेकिन वहां पर through the treaty it was unified. And some of the ugliest movements led to World War I. So that is the short summary I can say of the chapter Rise of Nationalism in Europe. इसके अलावा इस चैप्टर से ये जो पिक्चर्स बनी है, एक तो फ्रेडरिक शोरी वाला मैं आपको बता चुकी हूं, दैट इज वन ऑफ द पोर्शन. देन व्हाट आर दीज, व्हाट वर द, जैसे हम बोलते हैं मातृभूमि, और आपको भी पता है कि वी कंसिडर मदर अर्थ, हम कहते हैं धरती माता. तो दे ऑल्सो हैड दिस व्हाट वी कॉल एज एलिगोरीज. एलिगोरीज होते हैं, इट इज एन एक्चुअली इंग्लिश पोएटिक डिवाइस है ये. तो एलिगोरी होता है किसी चीज को किसी चीज से कंपेयर करना. तो दे हैड पर्सोनिफाइड द मदर एज जर्मेनिया, जर्मनी में जर्मेनिया, फ्रांस में मेरियान, ब्रिटानिया इन ब्रिटेन. दे यूज्ड सम सिंबल्स. आपके ये मैच द कॉलम में आया था वैसे तो, बट इट कैन बी एन एमसीक्यू क्वेश्चन ऑल्सो. दे यूज सम सिंबल्स लाइक ब्रोकन चेन. ब्रोकन चेन जो था दैट वाज चेन यानी कि फ्री करना. ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, जर्मन का स्ट्रेंथ. क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ग्रीनिश कलर, हीरोइनिज्म. स्वॉर्ड, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना. ऑलिव ब्रांच, अगेन विलिंग टू मेक पीस. ब्लैक, रेड एंड गोल्ड कलर, ये पहले था आपका, नाउ लेटर ऑन दिस फ्लैग वाज बैंड. रेज ऑफ राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, न्यू एरा. दिस यू हैव टू लर्न. So this is what we call as the chapter Rise of Nationalism in Europe. That's a this is a short summary I can say. On your screen you can see I have written something and definitely you will see the NCERT. यहाँ पर आप देख सकते हो, all the NCERT is there. I've taken everything which you will be required to learn or you have to understand. तो आपको मैंने एक टाइमलाइन बताया था जो यहाँ पर लिखा हुआ है. If you see it is there in your book also. तो बुक के अंदर आप पढ़ सकते हो. इसके अंदर से एक आध क्वेश्चंस आए हैं, नॉट एवरीथिंग हैज कम बिकॉज हमने बाकी सब कुछ तो लर्न करना है. इफ यू सी द वर्ड 1866 to 71, दिस इज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. तो ये आपके पेपर में आया हुआ है, एक बार आया है, मतलब बाकी ऐसा कुछ नहीं आया है. 1815 याद रखना है, ट्रेटी ऑफ वेना. 1815 याद रखना है, ट्रेटी ऑफ वेना. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे वो आप सिर्फ याद करना, नॉट एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग. ठीक है. एंड इन योर बुक इफ यू सी, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये जो यूटोपियन है, फ्रेडरिक शोरे है, वट एवर आई हैव अंडरलाइन, नेशन स्टेट है, दे हैव बीन द वन मार्कर क्वेश्चन. अगर हम बुक को देखते हैं तो ये एक बुक था. देन ये जो पिक्चर है ये एक बार आया था इंटरप्रेट करने के लिए इन द वन मार्कर क्वेश्चन. सिमिलरली ये जो नेपोलियन की पिक्चर है ये भी एक बार आया था वन मार्कर में. देन इफ यू सी, ये क्वेश्चंस पेपर में कैसे आए थे वो मैंने यहीं पे डाल रखा है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. एक ये क्वेश्चन ऐसे आया है. दूसरा, what were the measures and practices introduced by French revolutionary for collective identity? दोनों का यही आंसर है, ये जो लिखे हुए हैं all the points.
5 मार्कर में आया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी विल बी डूइंग इट एट लेंथ इन द नेक्स्ट क्लास. देन ये देखिए न्यू वर्ड्स आपके, एब्सोल्यूटिस्ट. इफ यू सी ऑन द राइट इन द बुक इट इज गिवन, पेपर में 1-1 में आया हुआ है, राइट. देन आपका है हाउ वाज यूरोप डिवाइडेड इन द अर्लियर पीरियड. इसमें एक ही क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि पेपर में आया है तो वो ये है, द हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो कौन कौन सी कंट्री का था, बस अगर आया है तो. बाकी ऐसे कुछ नहीं आया है. Then this is how I'll be explaining you what is the term liberalism means, from which language it has been taken. Latin one एक बार आया है बस. Zollverein आपके पेपर में आया है, 3 मार्कर, 2 मार्कर, 1 मार्कर, तीनों. Then what were the changes made by Napoleon Bonaparte? 3 and 5 में आया है. Main features of Treaty of Vienna, once or twice it has come. Then write a short note on Giuseppe Mazzini. It has come again in 3 marker. Then July Revolution एक आध बार आया. Greek War 2 mark में आया है तो. And most of the time from this particular concept, the Treaty of Constantinople ही आया है अभी तक. Then how did culture, ये देखिए मैंने डार्क लिखा हुआ है, culture played an important role, या choose any 3 examples to show the contribution of culture. This question has been in the exam many a times. How did language and culture वाला जो question है ये आया. Then Silesian weavers जो है ये schools में आए हुए हैं, this मतलब particular. Unification of Germany is a very favorite question of school as well as boards. Unification of Germany. Italy एक आध बार आया है in the choice. Then write a short note on Garibaldi. This is also a school में आया है. Strange case of Britain. इसमें आपका जो Act of Union है वो पेपर में ज्यादातर आया है. What is the national flag? What is their national anthem? ये पेपर में आया है. Then what events led to World War I? ये आपके 5 मार्क्स में आया है in the exams. So these are the most important questions and I would be taking up, this is all, whatever you are seeing, everything is NCERT only. इसको मैंने अपने notes वाली डायरी में ऐसे रख लिया है, but this is NCERT only. ये NCERT ही है, उसको सिर्फ मैंने notes में डाल के point wise mark कर लिया है for easy learning, ताकि आप लोग अच्छे से easily learn कर सकें. So this we will be starting in the next class, that is rise of nationalism in Europe. Right? So you can, once this is finished with NCERT, you will be able to learn whatever I have written, whatever I have marked. You have to learn only those points or those questions which will help you out in your exam. Okay?